اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان رشتوں میں تلخیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ترکی نے امریکہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے انقرہ کے خلاف کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی کی سرزمین پر 2 اہم امریکی اسٹریٹجک فوجی اڈوں کو بند کر دیا جائے گا۔ نیٹو میں امریکہ کے اہم اتحادی ملک نیوز 18 اردو۔ اور اب خبر لبنان سے ہے، جہاں حکومت مخالف مظاہرے لگاتار جاری ہیں۔ ہزاروں عوام حکومت کی ناکامیوں اور پالیسیوں کے خلاف بیروت کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے۔ اس دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلسل جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ پیر کو لبنانی پارلیمان یہ طے کرے گی کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعد الحریری اپنے عہدے پر واپس آ جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیروت میں مسلسل دوسرے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ان جھڑپوں میں مظاہرین نے سیکیورٹی دستوں پر بوتلیں اور پٹاخے پھینکے، تو وہیں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیوں، آنسو گیس، لاٹھی چارج اور پانی کی تیز دھار کا متعدد مرتبہ استعمال کیا۔ لبنان کی انٹرنل سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے ان پر پٹاخے پھینکے اور پتھراؤ کیا، جس کے بعد انہوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اتوار کو مظاہرین کے سڑکوں پر دوبارہ نکل آنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز بیروت کی سڑکوں پر تعینات کر دی گئی ہیں۔ اس دوران وزیر داخلہ رایا الاحسان نے سنیچر کے روز سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے سخت کریک ڈاؤن کی تفتیش کا حکم دیا ہے، جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وزیر داخلہ نے شرپسندوں کو بھی خبردار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کافی زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ سیکیورٹی فورسز قانون سے بالاتر ہیں اور مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ لبنان میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ 17 اکتوبر سے جاری ہے۔ مظاہرین ملک میں پھیلی بدعنوانی، بے روزگاری، عوامی سہولتوں کے فقدان، ملکی اشرافیہ کے مسلسل اقدار میں رہنے اور سرکاری خزانے کے بے جا ذاتی استعمال کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ملک کے موجودہ سیاسی نظام میں ترمیم کی جائے،
साथ ही आज़ाद और गैर फ़िरका वाराना काबीना की तश्कील को यकीनी बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब इराक का रुख कर लेते हैं, जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने मोहम्मद शिया अस्सूडानी की मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्सूडानी कुछ दिनों कबल तक बदउनवान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लिहाजा वो भी काबिल कबूल नहीं। इराक में गुज़श्ता अक्टूबर से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 400 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजाहरे की वजह से आदिल अब्दुल मेहदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को नए वज़ीर आज़म के तौर पर मोहम्मद शिया अल-सूडानी तस्लीम नहीं है। मुजाहिरीन ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए शिया अल-सूडानी की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एहतजाजियों का कहना है कि शिया अल-सूडानी भी कुछ दिनों पहले तक इसी बदउनवान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिसके खिलाफ अवाम कमर बस्ता है। نرفض ترشيح السيد محمد الشيع السوداني لأنه كان يتنصب عدة وزارات منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد استقال قبل عدة أيام. هذا يعني أنه ما زال متحزب وسياسي. هذا الاستقالة لا تعني شيء لنا. نحن نريد رئيس الوزراء يكون مرح من الثورة من ساعة التحرير بالذات. نستنكر ما قدمته وزارة الوزارات أو من خلالها البرلمان انه تعيين رئيس وزراء محمد السوداني. نستنكر، احنا نريد واحد من مستوى الشارع العراقي مثلا يعرف معاناة العراق، يعني مو مثلا احنا كوزارات ما شايفيهم ولا نعرفهم ولا واصلين مطالبنا، على الاقل نريد تعيين المتخرجين، فتح المعامل، دعم المنتج الوطني، كل استيراد، ما يصير هيك شيء. इराक में पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ 1 अक्टूबर को दारुल हुकूमत बगदाद और जनूबी सूबों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू होने के बाद हुआ। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर बराह रास्त फायरिंग की गई थी। इराक में मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 400 से ज़्यादा हो चुकी है। बदउनवानी, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलतों के फुक़दान के खिलाफ मुजाहरे की वजह से 29 नवंबर को इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद 2 दिसंबर को उनका इस्तीफ़ा इराकी काबीना ने मंजूर कर लिया। इराकी अवाम ने इस्तीफ़े का खैरमक़दम करते हुए सारे सियासी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदलने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर बगदाद में अहसीब अहलाल हक ग्रुप के लीडर कैस अल खाजिल पर अमरीकी पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान अहलाल हक ग्रुप के कारकुनों ने एक मिलिट्री शो भी किया। अहलाल हक ग्रुप के लीडर कैस अल खाजिल और उनके भाई लैत अल खाजिल को अमरीका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इन पर ईरान के जरिए पुश्तपनाही का इल्जाम है। تظاهرت هذا اليوم واضحة أهدافها ورسالتها، هو رفض التدخل الأجنبي في قرار العراق الداخلي، بالإضافة إلى ذلك رفض القرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القيادات الجماهيرية في العراق وعلى رأسهم سماحة الشيخ قيس الخزعلي، لذلك هبت هذه الجماهير للتنديد. खबर फिलिस्तीन से है, जहां एक मरतबा फिर इंतखाबात की सुगबुगाहट है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास बहुत जल्द पार्लिमानी इंतखाबात कराने का फैसला ले सकते हैं। बताया जाता है कि ये इंतखाबात 2020 में मुनक्किद कराए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल PLC के गुज़श्ता इंतखाबात 2006 में हुए थे, जिसमें गजा में हमास ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इंतखाबात के बाद फतेह ग्रुप और हमास में गजा के कंट्रोल को लेकर कशीदगी पैदा हो गई थी। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ बातचीत अभी नामुकम्मल मरहले में है, लेकिन इसकी कोशिशें जारी हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कतर और इसकी पड़ोसी रियासतों के दरमियान रिश्तों में एतमाद बहाल होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। ताहम उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त बेहतर तरीके से हुई है। वाज़ेह है कि 2.5 साल कबल सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर सुपर दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे।
We think that the Iran nuclear deal, और चलिए अब बात करेंगे शहरियत कानून पर जारी तशद्दुद और एहतजाज की। ये डेमोक्रेसी है। सरकार ने संविधान पे हमला किया है। जी हां, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा और तालिबात पर बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर के बेशतर तालीमी इदारों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवतुल उलमा और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीर कल रात की है जब एहतजाज हो रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कल काफी हंगामा हुआ और उसके बाद आज भी एहतजाज होता रहा। नदवे में भी आज सुबह एहतजाज शुरू हुआ था लेकिन इंतजामिया ने उस पर काबू पा लिया और 5 जनवरी तक नदवे को बंद कर दिया गया। तो वहां मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आज भी तलबा ने लगातार एहतजाज किया है। और उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। तलबा के साथ साथ अब सियासी लीडरान भी मैदान में आ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लीडरों ने इंडिया गेट पर धरना दिया। धरने की क़यादत प्रियंका गांधी ने की। धरने में कांग्रेस के आला लीडरान मौजूद रहे। प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी और दीगर कई आला लीडरान धरने पर बैठे। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ यह धरना दिया गया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने वजीर आजम पर जमकर हमले किए। हिंदुस्तान में शहरियत कानून पर चारों जानिब मचे हंगामे के दरमियान बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपने शहरियों को वापस लेने को तैयार है। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान अपने शहरियों की फहरिस्त मांगी है और कहा है कि अगर कोई बांग्लादेश का शहरी हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है तो उनका मुल्क अपने शहरियों को वापस ले लेगा। हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर जारी एहतजाज के दरमियान बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने कहा है कि अगर इनके मुल्क का कोई भी शहरी हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है तो वो अपने शहरियों को वापस लेने को तैयार है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इन्हें हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी शहरियों की फहरिस्त सौंपे। AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी बांग्लादेशी शहरी है तो उनका मुल्क उसे वापस लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपने ऐसे शहरियों को अपने मुल्क आने की इजाज़त देंगे चूँकि एक शहरी होने की वजह से इन्हें अपने मुल्क वापस आने का इख्तियार है। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार करार दिया है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह की कशीदगी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने ढाका हुकूमत को दिलासा दिया है कि NRC हिंदुस्तान का दाखिली मामला है और इससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बाहमी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने चंद रोज़ कबल अपना हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया था। इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने मसरूफ़ तरीन प्रोग्रामों की वजह से हिंदुस्तान का दौरा नहीं कर सके। उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह के उन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया कि बांग्लादेश में अक़लियतों का इस्तेहसाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। इंटरनेट से तुरंत जवाब पाना हो तो हर बार दूसरों के पास जाना पड़ता है, पर अब सारे जवाब फ्री में मिल जाते हैं इस 2G फोन में। आइडिया फोन न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। शोरी ज़दा अफ्रीकी मुल्क कांगो के मशरिकी हिस्से में गुज़िश्ता जुमे से जारी बागियों के मुसल्लह हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। कांगो में इंसानी हुकूक के ग्रुप के मुताबिक ताज़ा तरीन हमले में 11 अफराद मारे गए। ये हमले अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बागियों ने किए हैं। इन बागियों की कार्रवाइयों की वजह से मशरिकी कांगो में हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। आबोहवा की तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस इतवार को इख्तिताम पजीर हुई। स्पेन के शहर मैड्रिड में मुनक्किद हुई अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे तवील कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी वाज़े फैसले के ही ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची। आबो हवा की तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे तवील कॉन्फ्रेंस 15 दिसंबर को मैड्रिड में खत्म हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने अगले साल कार्बन गैसों के अखराज में मजीद कमी करने के वादे तो किए, लेकिन अहम शोबों में वाज़ेह फैसलों का ऐलान मुलतवी कर दिया। माहिरीन ने अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े मुल्कों पर यह एतराज़ किया है कि वो आबो हवा की तब्दीली के बढ़ते हुए बहरान को रोकने की जानिब पेश कदमी में रुकावट बन रहे हैं। ताहम इस तवील आलमी कॉन्फ्रेंस में कुछ वादे और कुछ पेशरफ्त भी हुई है। यूरोपीय यूनियन ने इस वादे पर इत्तेफाक किया कि वो 2050 तक कार्बन गैसों का अखराज 0 की सतह पर ले आएंगे। ताहम एक यूरोपीय मुल्क पोलैंड ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन ने कार्बन गैसों के अखराजात में इजाफा रोकने पर इत्तेफाक तो किया, लेकिन इस बारे में वो कोई वाज़ेह हदफ देने में नाकाम रहे। इसी तरह कार्बन गैसों के अखराज से मुतालिक मार्केट के कवानीन और गरीब मुल्कों को ग्लोबल वार्मिंग रोकने की जानिब राग़िब करने के लिए माली इमदाद के उसूल और कवायद भी तय नहीं किए जा सके, जिससे अगले साल मुल्कों पर दबाव में इजाफा होगा जब 2015 की पेरिस कॉन्फ्रेंस के मुआहदों पर अमल दरामद का आगाज होगा। कॉन्फ्रेंस में उन इंतबाही इशारियों को उमूमी तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया जिनका ताल्लुक कुरे अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से समंदरों की सतह के बढ़ने, मौसमों में शिद्दत आने और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से है। हत्ता कि इस अहम तरीन पहलू को भी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई कि ग्रीन हाउस गैसों का अखराज मुसलसल बढ़कर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। नाक़दीन ने इसका जिम्मेदार ब्राज़ील और अमेरिका को करार दिया, जो अगले साल पेरिस मुआहदे से निकल रहे हैं, जिसने मैड्रिड कॉन्फ्रेंस की पेशकदमी का रास्ता रोक दिया है। स्वीडन की 16 साला सरगर्म माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग ने दुनिया के बड़े ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कुरे अर्ज का दर्जा हरारत बढ़ाने का सबब बनने वाली गैसों का अखराज रोकने के मामले में चालाकियां दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग की हुकूमती सरबराह कैरी लेम ने चीन के सदर शी जिनपिंग से पीर को बीजिंग में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल में कैरी लेम से मुलाकात के बाद कहा कि मरकजी हुकूमत इनके हौसले का एहतराम करती है और जिम्मेदारियों से भी बखूबी आगाह रहते हुए इन्हें अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाती है। चीनी सदर की तरफ से यह हिमायत एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कैरी लेम को हांगकांग में जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन के शदीद मुजाहरों का सामना रहा है। मुजाहिरीन कैरी के मुस्ताफी हो जाने का मुतालबा भी करते आए हैं। 这是香港回归祖国以来
局面最为严峻复杂的一年。你能够 आगे बढ़ेंगे। खबर फ्रांस से है, जहां पेंशन इस्लाहात के खिलाफ हड़ताल मुसलसल जारी है। पीर को ट्रांसपोर्ट के शोबे की हड़ताल का आज 12वां दिन है। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रों की हुकूमत हड़ताल के बावजूद अपने इस्लाहाती प्रोग्राम का निफाज चाहती है। इस हड़ताल की वजह से पेरिस और गर्दोनवाह के इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है। पेरिस शहर में सिर्फ खुदकार मेट्रो सर्विस ही बहाल है। ड्राइवर्स के सहारे चलने वाली मेट्रो सर्विस मुअत्तल है। इसी तरह रेलगाड़ियों के अंदरूनी और बैरूनी निजाम भी हड़ताल की वजह से गैर फाल है। फिलिपाइन में इतवार के रोज आए जलजले में महलूकीन की तादाद 5 हो गई है। कई अफराद अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इमदादी कारकुनों ने पीर को कम से कम 3 मजीद नाशे मलबे से निकाली हैं। मजीद जमीन बोस हो जाने वाली इमारतों के मलबे से फौजी, पुलिस एहलकार, फायर फाइटर्स और रजाकार 7 लापता अफराद की लाशें जारी रखे हुए हैं। फिलिपाइन के जुनूबी हिस्सों में इतवार यानी 15 दिसंबर को आने वाले इस जलजले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई थी। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में कई इमारत और मकानात मुनहदिम हो गए थे। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज डावो शहर से जुनूब मगरिब की समत 56 किलोमीटर की दूरी पर जमीन में 53 किलोमीटर की गहराई में था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली आग सेहत, मईशत और माहौलियात के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। माहिरीन मौसमियात ने पेशगोई की है कि इसकी वजह से शदीद हीट वेव का इम्कान है, जो इस कदर शदीद होगा कि दर्जा हरारत का अब तक का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में नवंबर के पहले हफ्ते में जंगलात में लगने वाली आग से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7 से जायद मकानात तबाह और कम से कम 30 लाख एकड़ आराजी पर फैले जंगलात जलकर खाक हो गए हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी में कई माह कबल लगने वाली आग और धुएं ने शहर को अब तक अपनी लपेट में ले लिया है। पीर को डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत को खबरदार किया गया है कि शहरियों को सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अमवात की शरह भी बढ़ रही है। आग के सबब सिडनी के शुमाल में वाक़ तकरीबन 20 मकानात जलकर राख हो गए। जापान और जनूबी कोरिया ने तिजारती मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के हुक्काम ने हाई टेक्नोलॉजी के बरामदात और तिजारत के फरोग से मुतालिक टोक्यो में बातचीत की। बातचीत के बाद जापान के वज़ीर कॉमर्स ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारती मुज़ाकरात जारी रखने पर राजी हैं, ताहम अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। चीन की मईशत में काफी बेहतरी दर्ज की गई है। इकोनॉमी इंडेक्स में वैल्यू एडेड आउटपुट में सालाना 5.6% का इजाफा दिखाया गया है। यह इजाफा रवा माली साल के 11 महीनों में ही दर्ज किया गया है। चीन के कौमी आदादोशुमार ब्यूरो के तर्जुमान का कहना है कि चीन ने अपनी शरहनमो को बरकरार रखा है। 还是保持了一个总体平稳、稳中有进的发展态势。这充分体现出在国际环境这个复杂严峻的这种条件下呢，中国经济呢确实具有这个强大的韧性、潜力和回旋空间，也说明了中国经济这个稳中向好、长期向好的基本趋势没有发生改变。 टैटू यानी जिल्द को गोद कर नक्श बनाने का रुझान शोरीज़दा मुल्क अफगानिस्तान में भी बढ़ रहा है। सिरिया शहीदी नामी खातून को मुल्क की पहली टैटू फनकार होने का एजाज हासिल हुआ है, लेकिन कदामत पसंद मुल्क अफगानिस्तान में इन्हें सख्त गिरों से खतरा भी लाहक है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जिल्द को गोद कर नक्श बनाने के हुनर में माहिर अफगानिस्तान की पहली खातून टैटू फनकार सुरैया शहीदी के अंदर हुनर के साथ साथ बेहद हौसला भी है। उन्होंने 18 माह कबल काबुल में
मोबाइल टैटू शॉप शुरू की, लेकिन दुकान खुलने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ताहम सुरैया ने हिम्मत नहीं हारी है। خب تتو بر من یک شغل است، شغلی که من خودم خیلی علاقه‌مند هستم برش و بر من فرقی نمیکنه که مشتری من مرد باشه یا دختر باشه، من تتوی خودم میزنم. सुरैया शहीदी को यकीन है कि हालात एक दिन जरूर बदलेंगे। सुरैया का मानना है कि अगर पुरअमन तौर से तालिबान की वापसी भी इस मुल्क में होती है तो उन्हें खुशी होगी। طالبا اگر بیاین در افغانستان، اگر اونا باعث شود که در افغانستان صلح ایجاد شود، خب ما هم خوش هستیم که در افغانستان صلح ایجاد شود. ولی اگر با آمدن از اونا کار ما مثلا متوقف شود یا آزادی‌های خیلی از خانم‌ها جلوش گرفته شود، من خودم اولین خانمی هستم که در علیهشان ایستاد میشم. تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی. شب بخیر.